A very fine good morning, students. So welcome once again. I welcome you back for your history classes, history online classes. So today I'm going to start from the next chapter, that was chapter 5. Before like that, I have already sent you a link that was of the Surat split, which I said you that it is connected with your chapter 5. Now today I'm going to start from the first topic, that is Morley-Minto reforms. Okay, as you can see, like Morley-Minto reforms, it was introduced in the year 1909. It is mentioned on the board also, I have mentioned it. But Morley-Minto reforms, like today I will be explaining you like who was Morley, who was Minto, and how did they done the reformation, especially in the year 1909. Moreover, what was the reason for the Morley-Minto reforms? What was the reason for them to coming in India? Like this reformation, what was the main reason for coming in India? Okay, so let's begin our lesson today. First of all, Morley-Minto reforms is also known as Indian Council Act 1909. It is also known as Indian Council Act 1909. Now, before that, like actually this reform was actually introduced in United Kingdom. It was introduced in United Kingdom as the Morley-Minto reforms. Now, what was it? Actually, Morley-Minto reforms was basically for the involvement for the Indians in the British government. ठीक है, involvement of Indians in the British government. I'll mention here. Involvement of Indians in British government. Okay, now a small story about this. Actually, Morley was a different person and Minto was different person. John Morley, actually he was the state president. He was the secretary of state of India, and he was in England. ठीक है, he was in इंग्लैंड. वहीं पे मिंटो था जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया था ड्यूरिंग 1909. तो वाइस रॉय ऑफ इंडिया था. तो ये हुआ कि जो भी ऑर्डर इंग्लैंड से मिलता था वही चीज़ स्टैब्लिश करता था, इंट्रोड्यूस करता था इंडिया में. उसी तरीके से मॉर्ले ने क्या किया था कि इंग्लैंड में रह के ही इस रिफॉर्मेशन के लिए बोला गया था, एंड मिंटो ने इसी चीज़ को स्टैब्लिश किया इंडिया में. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट वन थिंग, लाइक व्हाट वाज द रीजन फॉर मॉर्ले लाइक coming Morley-Minto reforms in India. What were the reasons? So, reasons, okay. The first reason, before this I would like to say that remember the topics of Surat split, and if you have forgotten, like if you have, it is just skipped with your mind, before watching this video just go through that video, then only it will be little bit understandable. This topic will be little bit conceptual for you also and for your studies also. So let's start. What was the reason? First of all, the reason is increase in revolutionary activity. Increase in revolutionary activities. अब ये रेवोल्यूशनरी क्या था? रेवोल्यूशनरी मतलब होता है कि जो ब्रिटिश के खिलाफ जो पब्लिक अपना आवाज़ उठा रही थी, तब इंडियंस दोज वेर टोटली अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश. मोर ओवर जो ब्रिटिश अटैक हो रहा था, मोर ओवर दैट जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रहे थे इंडिया में, फॉर टू स्टॉप दैट जो इंक्रीज होते जा रहा था डे बाय डे विद द ग्रुप्स, विद द पीपल, विद द लीडर्स, तो उसको स्टॉप करने के लिए this was done. Okay, that was Morley-Minto reforms. The second reason was 1905 का partition of Bengal. Bengal partition की वजह से most probably many of the Indians they were against of the British. इसी के वजह से this was also one of the reason for bringing Morley-Minto reforms. Okay, now your next reason is moderates and extremists. Remember what did I say to you in Surat split? Surat split में क्या हुआ था? Surat split में क्या हुआ था? It was the
मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का जो स्प्लिट हुआ था किसमें, सूरत स्प्लिट में, वन ऑफ द ग्रेट इंसिडेंट विच हैपेंड इन द ईयर 1907. तो इस चीज, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई, बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट दे लेफ्ट द कांग्रेस एंड कहीं ना कहीं यूथ्स क्या थे, वॉच द प्रीवियस वीडियो, उसमें यूथ्स क्या थे, दे वर टोटली इन अगेंस्ट ऑफ, लाइक दे वेर इन फेवर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. तो जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस को छोड़ा, वहाँ पे यूथ्स ने भी कांग्रेस को सपोर्ट करना छोड़ दिया. सो दिस वाज द रीजन व्हाई दिस हैपेंड. नाउ नेक्स्ट रीजन, व्हाट वाज द नेक्स्ट रीजन? I'll write here only. Okay, the next reason was 1906 में जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था. रिमेंबर Muslim League. Wait, I'll write here. Formation of Muslim League. Even in Surat split, before that in 1906 I have explained कि मुस्लिम लीग ने किस तरीके से अपना एक सेपरेट कम्युनिटी उन लोग ने डिमांड किया था. समझ में आया किस तरीके से उन लोग ने अपना सेपरेट कम्युनिटी डिमांड किया था? यस और नो? सो लाइक दिस ओनली 1906 में जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग था, डे बाय डे द मुस्लिम लीग्स डिमांड, एक्चुअली इट वाज टोटली डे बाय डे, इट वाज लाइक उसको सेटल करने के लिए वन ऑफ द रीजन वाज पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स. ओके, वन ऑफ द मेन रीजन वाज पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स. अब पॉइंट नंबर 5 में ये था दैट ब्रिटिशर्स दे बिलीव्ड दैट कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बट ऑल्सो दे गेव वैल्यू फॉर द वेस्टर्नाइज एजुकेशन. जिस तरीके से इंडिया लोग ने एक्सेप्ट किया वेस्टर्नाइज एजुकेशन, जिस तरीके से उन लोग चल रहे थे, उस हिसाब से वन ऑफ द मेन रीजन वॉज पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स. मतलब अब इस चीज़ को भी थोड़ा हैंडल डाउन करना है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ते जा रहे थे, दिस वॉज ऑल्सो लाइक ऑल द इंडियंस, लाइक ऑल द पीपल दे बिलीव्ड दैट दिस ड्रामेटिक शुड बी स्टॉप्ड. तो इसी के लिए क्या था कि स्पेशली उन लोग ने जो वेस्टर्नाइज को लेके जिस तरीके से बना दिया था, लाइक जो जॉब कंपलसरी कर दिया था, तो कहीं ना कहीं इस चीज से इंडियंस जो भड़के हुए थे, दे नीड टू स्टॉप दैट ऑल्सो. सो आई मेंशन दिस वन पॉइंट. वेस्टर्नाइज एजुकेशन, समझ में आया? सो दीज आर द 5 points for the reasons of, like these are the main reasons for parliamentary reforms, like why it arrived in India, what was the reason for reformation to coming in India. So number 1 point, once again I would like to repeat it. Number 1 point is increase in revolutionary activities. revolutionary activities में जैसे आपका ब्रिटिश अटैक जो हो रहा था, ब्रिटिश में जो अटैक हो रहा था, दैट वन, आफ्टर दैट जो वायलेंट एक्टिविटीज हो रहे थे इंडिया में, इंडियंस दे वर टोटली अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट 1905 में जो बंगाल पार्टीशन, बिकॉज ऑफ दिस इंडियंस वर टोटली अगेंस्ट ऑफ, मतलब टोटली दे वर अग्रेसिव ऑन गवर्नमेंट. द नेक्स्ट रीजन वाज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट होना. नेक्स्ट वन इज 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का जो दिन पे दिन डिमांड बढ़ रहा था, द डिमांड विच एक्चुअली दे वर डूइंग टू सेटल दैट डिमांड्स ऑल्सो दे केम. एंड द लास्ट रीजन वॉज वेस्टर्नाइज एजुकेशन. जिस तरीके से इंडियंस वो क्या बोलते हैं उसको, जो लीडर्स लोग बहुत ज़्यादा जो इस सब चीज़ को अगेंस्ट में जा रहे थे, द पीपल दोज हु वर टोटली अग्रेसिव ऑन इट. सो दीज वर द रीजन्स व्हाई the people why the British they wanted to settle all these things. Okay, now see these reformation was actually assent मतलब होता है उसको रजामंदी. पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स को रजामंदी कब मिला? इट वाज ऑन 25 May 1909. 25 May 1909 को पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स को रजामंदी मिला. समझ में आया? मतलब इस रिफॉर्मेशन को चलाने के लिए रजामंदी मिला. नाउ व्हाट हैपेंड विद दिस, लाइक व्हाट वर द रीजंस? नाउ व्हाट हैपेंड अंडर द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, मतलब नाउ अब उसको जब अप्लाई किया गया तो क्या हुआ? Under parliamentary, अंडर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स क्या हुआ? ठीक है, नंबर 1
elected members they were increased, मतलब दो पार्ट में काउंसिल डिवाइडेड था ना, एक था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दूसरा था प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वेर इंक्रीज, मतलब जहां पे पहले 16 था अब 60 कर दिया गया। समझ में आया? मतलब नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वेर इंक्रीज्ड, जिसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आया? सो दिस वॉज वन थिंग, दिस वॉज फर्स्ट वन, ओके, लाइक अंडर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो इंक्रीज कर दिए गए थे, इसमें से कुछ नॉन ऑफिशियल भी थे, बट इसमें क्या हुआ कि मेजोरिटी जो था ना, मेजोरिटी जो था वो नॉन ऑफिशियल्स को, नॉन इलेक्टेड को मेजोरिटी किसका ज्यादा दे दिया गया? नॉन इलेक्टेड को। मतलब कि जो 60 मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए उसमें जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स थे दे वर नॉन इलेक्टेड। एक्चुअली इलेक्टेड में और नॉन इलेक्टेड में फर्क क्या है कि द पीपल दोज हु आर एक्चुअली हायर्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स थे वो एक्चुअली गवर्नमेंट से हायर नहीं किए रहे थे। तो ये वाला जो मेजोरिटी था वो नॉन इलेक्टेड को ज़्यादा दे दिया गया। मतलब कि इसमें ब्रिटिश ने सबसे ज़्यादा प्रिविलेज उन लोगों को दिया जो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन से चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम पीपल्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत किया। समझ में आया? नेक्स्ट थिंग विच वॉज डन इज सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया, इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि एक सेपरेट डिवीजन बना दिया गया फॉर द मुस्लिम लीग्स। मतलब इतना पार्टीशन छोड़ दिया गया कि मुस्लिम अब अपना कुछ भी, मतलब मुस्लिम्स का एक अलग कम्युनिटी जैसा बना दिया गया, दैट मुस्लिम्स कैन हैव द मेजोरिटी एंड दे कैन वोट। समझ में आया? लेकिन इस चीज को लेके ब्रिटिश ने क्या गेम खेला? दिस सिग्निफाई अबाउट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मतलब ब्रिटिश, देखो सूरत स्प्लिट में आप लोग ने क्या पढ़ा था कि मुस्लिम लीग जो थे दे ऑलवेज वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट। तो इस चीज में ब्रिटिशर्स ने एडवांटेज उठाया बाय गिविंग देम द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। उसको डिफरेंट, उसको अलग से करने का मतलब यह था कि उन लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम्स दे आर टोटली इन अगेंस्ट ऑफ हिंदूज और इंडियंस, तो कहीं ना कहीं यही चीज लेके दिस वाज वन काइंड ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। समझ में आया? एक ये हो गया। अब द नेक्स्ट थिंग वाज लेजिस्लेटिव का पावर बढ़ा दिया गया। लेजिस्लेटिव का जो पावर था दैट वाज पावर वाज इंक्रीज्ड। समझ में आया? लेजिस्लेटिव का जो पावर था बढ़ा दिया गया, बट नॉट फुल्ली, नॉट फुल्ली। क्लियर? नाउ let's come to this thing that Lord Minto he never wanted, actually ये सब चीज से क्या प्रूव होता है that Lord Minto जो उस टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, Lord Minto he never wanted कि इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। समझ में आया? लॉर्ड मिंटो कभी नहीं चाहता था कि इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि, और मोर ओवर ये सब चीज में एक चीज हमें ये भी चीज देखने को मिल रहा है दैट एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो बना दिया गया, दैट्स व्हाई लाइक लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, इसमें एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस कर दिया गया, दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लॉर्ड मिंटो इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ, he is also known as the father of communal electorate in India, ठीक है। That's why he is also known as father of communal electorate of India. So that after this only he was named, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट ये था दैट पीपल वेर नॉट सेटिस्फाइड, पीपल वेर अनसेटिस्फाइड। मतलब
लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म से पीपल वेर अनसेटिस्फाइड, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, दो मेन चीज हुआ, एक होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग जो इंट्रोड्यूस हुआ, इट स्टार्टेड कहां पे, आयरिश लाइन पे, आयरिश लाइन्स पे, जिसका लीडर्स था एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। समझ में आया। होम रूल लीग स्टार्ट हुआ, जो आयरिश लाइन पे शुरू हुआ, दैट वाज एनी बेसेंट, जो लीडर्स थे, एनी बेसेंट एंड तिलक, दे वर द लीडर्स। समझ में आ गया, दे वर द लीडर, ओके। लीडर्स वेर एनी बेसेंट एंड तिलक। अब फॉर्मेट ये था कि एनी बेसेंट एंड तिलक का दोनों का अलग अलग ही कंडीशंस था, लाइक दे एक्चुअली देयर मोटिव वर सेम बट समवेयर देयर कंडीशंस वर डिफरेंट, मतलब उनका काम करने का तरीका अलग था एनी बेसेंट का, एंड जो बाल गंगाधर तिलक थे, ही हैड द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एनी बेसेंट ने क्या किया, लाइक शी डिमांडेड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें प्रोपागेंडा बना उन लोग का, प्रोपागेंडा बना उनका, प्रोपागेंडा ऑफ न्यूज़पेपर। समझ में आया, सॉरी, प्रोपागेंडा थ्रू न्यूज़पेपर, मतलब थ्रू न्यूज़पेपर शी वांटेड टू पब्लिश, शी वांट, सो पब्लिश के मतलब ये उन लोगों का मेन प्रोपागेंडा ये था थ्रू द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने दो न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस किए, दैट वाज न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। दिस टू वे द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब उसमें आता है लाइक बोथ दे हैड द डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस, ये मैंने कहा था। जैसे एनी बेसेंट का, अब आई विल शो यू, एक तरफ रख लो तिलक का और एक तरफ रख लो एनी बेसेंट का, ठीक है। तिलक ने अपना स्टार्ट किया, मतलब अपना एक कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, दैट वाज इन द ईयर ऑन अप्रैल 1916, ठीक है। वहीं पे एनी बेसेंट ने शुरू किया सितंबर 1916 में, ठीक है। इट वाज, तिलक ने प्लेसेस शुरू किया लाइक कर्नाटका एंड मद्रास, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है। वहीं पे एनी बेसेंट ने कहा शुरू किया, लाइक इट वाज ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, जैसे कि 200 ब्रांचेस खोले, जहाँ पे जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, ये सब एरियाज में खोले, दैट्स व्हाई इट वाज वन काइंड ऑफ रेस्ट ऑफ द इंडिया आल्सो, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, मेथड्स क्या थे अब इनका मेथड्स था कि थ्रू न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, रिलीजियस सॉन्ग्स, ये सब चीज़ में अवेयरनेस करना है, मतलब किस तरीके से ब्रिटिश कर रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू बी अगेंस्ट ऑफ इट। तो उसकी वजह से हम लोग ने क्या किया, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स एंड रिलीजियस सॉन्ग्स की वजह से दे शोड देयर अवेयरनेस, ठीक है। दूसरा चीज, शी डिमांडेड फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, ये मैंने तो पहले कहा था, थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड पैम्पलेट शी डिमांडेड फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया का खुद का सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट वन क्या हुआ कि अब इसमें रेस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या था, रेस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्स गवर्नमेंट का क्या था, लाइक दे वर टोटली एग्रेसिव। एग्रेसिव में क्या हुआ कि तिलक को जेल डाल दिया, तिलक पे केस हो गया, दैट वाज सिडिशियस केस, सिडिशियस केस, मतलब कि जो भी नेगेटिव न्यूज, फॉल्स न्यूज प्रिंट करता है उसको गिल्टी माना जाएगा। एंड एनी बेसेंट को भी अरेस्ट तो किए, बट soon she was released also because of the demand of the people. So like this topic is completed.
that is parliamentary reforms. If you have any doubt regarding this topic, you can ask me. Thank you.